गुरुकुल शिक्षा एंड दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर और आज हम बात करेंगे अबाउट मोबिलिटी. सो व्हाट इज मोबिलिटी? Mobility is denoted by mu. So, the ratio of drift velocity and electric field is known as mobility. Let me write it down. The ratio of drift velocity, we know that drift velocity is mentioned by Vd, and electric field is known as mobility. Okay, so mobility is denoted by mu. So mu will be equals to Vd vector upon E vector and modulus, because we know that Vd in vector form is negative due to the direction of drift velocity and electric field. So if we are talking about mobility magnitude, so we can write it down as mu equals to Vd upon E. This is the magnitude of mobility. Okay. Now we need to find out the unit of mobility. So I'll say unit. We know that mu equals to Vd upon E. Now Vd is a velocity, drift velocity. That means जो free electrons की जो velocity है, average velocity, that is called Vd. So velocity is called meter per second unit and electric field volt per meter. This is the unit of electric field, volt per meter. Volt per meter, meter ऊपर चला गया, so we will get meter square into volt into second. This is the unit of mobility. Now suppose if we have two metals having same electric field, then सपोज कीजिए आपके पास दो मेटल्स गिवन है. सपोज दिस इज आवर मेटल 1. So I'll write it down as M1 metal 1 and this is our metal 2. So I will write it down as M2, that means metal 2. इस मेटल पे जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है that is E. इस मेटल पे भी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड is E. इस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन एज Vd1 और इस मेटल में जो free electrons है उनकी drift velocity is given as Vd2. So we need to find out the ratio of mobility. So इस मेटल की मोबिलिटी को मैं mu1 मेंशन करके चलता हूं और इस मेटल की मोबिलिटी को मैं mu2 मान के चलता हूं. So I will say ratio, then ratio mu1 upon mu2 will be equal to, हमारे पास फॉर्मूला है Vd upon E. फर्स्ट मेटल के लिए मैं कहूंगा Vd1 upon E, because electric field E applied है दोनों पे सेम, अपॉन mu2. mu2 का फॉर्मूला भी Vd upon E. इस मेटल का Vd जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है that is Vd2 upon E. E से E कैंसिल आउट हो गया, सो मुझे मिलेगा mu1 upon mu2 is equals to Vd1 upon Vd2. That means दो मेटल इफ प्रेजेंट है इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड तो उनकी मोबिलिटी का जो रेशियो रहेगा वो उनके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रेशियो के इक्वल होगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल टॉक अबाउट इट. सो गाइज अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी. सो मैं हेडिंग डाल देता हूं, रिलेशन बिटवीन electric current and mobility. Okay, so guys I can say by relation between electric current and drift velocity,
हमको पता है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन जो हमने लास्ट क्लास में फाइंड आउट किया था, दैट इज I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ओके, जहां n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A क्रॉस सेक्शन एरिया एंड V D ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। So I'll say by definition of mobility, we know that mu is equals to Vd upon E. So guys, मैं यहां से Vd की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। So I can say Vd is equals to mu into E. This is our equation number 2. So guys, equation 2 से वैल्यू Vd को उठा करके equation 1 में पुट अप करेंगे। So I'll say by putting value in equation 1 by this equation, so I will get I equals to NEA VD। VD की वैल्यू है mu E, where mu is the mobility। Now guys, you have to understand one thing कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मोबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। So we can say this is our final answer। And so note, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, note that I is equals to NEA mu E, so I can say I proportional to mu। guys देखिए, मोबिलिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मोबिलिटी की क्या रहती है, प्रोपोर्शनल रहती है। यानी कि अगर कोई चार्ज कैरियर जितना ज्यादा मोबाइल होगा या जितना ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा, उसकी इलेक्ट्रिक करंट भी उतनी ज्यादा होगी। ओके, सो if I say if two metals have same electric current but having different cross section area, mobility and electric field, then देखो, सपोज करता हूं मेरे पास दो मेटल है, दोनों का इलेक्ट्रिक करंट सेम है बट उनकी मोबिलिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफरेंट है। तो उस केस में फर्स्ट मेटल के लिए मैं लिख सकता हूं, मैं कहूंगा मेटल फर्स्ट। इसके लिए इस फॉर्मूला से मैं राइट डाउन कर दूंगा I इज इक्वल टू NEA1, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, मोबिलिटी mu1 और इलेक्ट्रिक फील्ड E1। मेटल सेकंड के लिए रहेगा गाइस I इज इक्वल टू NEA2 mu2 E2। इन दोनों इक्वेशन में गाइस डिवाइड करेंगे ना तो मुझे एक चीज पता लगी कि अच्छा देखो गाइस, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 5 है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। सो मैं कहूंगा बाय कंपेयरिंग, by comparison NEA1 mu1 E1 is equals to NEA2 mu2 E2। any से any guys cancel out, so we will get A1 mu1 E1 is equals to A2 mu2 E2। so this is the relation between mobility, cross section area and electric field of two metal if they have same electric current। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, then we'll proceed with next topic। So guys, now we'll talk about Ohm's law। What is Ohm's law? According to Ohm, his full name is George Simon Ohm। He was a German physicist and according to Ohm, suppose कीजिए एग्जाम्पल के थ्रू आपके पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है and this conductor is having cross section area A and length of this conductor is L। इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहे हैं बट वी आर नॉट गेटिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी। एज वी नो वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक ही डायरेक्शन में अपना एवरेज वेलोसिटी दे। सो मैंने यहाँ पे एक बैटरी कंडक्टर से कनेक्ट कर दी। नाउ आफ्टर कनेक्टिंग बैटरी, इस कंडक्टर की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, नाउ इस कंडक्टर में आई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगी। ये बैटरी
कंडक्टर से निकलने वाली करंट I, ये करंट I सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रही है। ये जो बैटरी कनेक्टेड है इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, या फिर यूं कह सकते हैं आप बैटरी के थ्रू कंडक्टर पे V पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, ओम के अकॉर्डिंग ये जो पोटेंशियल है कंडक्टर पर अप्लाइड वो इस करंट के प्रोपोर्शनल रहेगा। ही सेड द पोटेंशियल अप्लाइड on a conductor is directly proportional to the current passing through the conductor only if, ये possibility कब होगी, only when physical properties of the conductor, physical properties of conductor remains constant. सो गाइज ये जो पोटेंशियल अप्लाइड है कंडक्टर पे वो करंट के प्रोपोर्शनल रहेगा कब, ओनली व्हेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप पूछिए सर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो, गाइज वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है टेम्परेचर, प्रेशर, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर। आपका जो कंडक्टर है इसका टेम्परेचर, इस पर प्रेशर, इसकी लेंथ और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ये कांस्टेंट रहेंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे तभी आपका V प्रोपोर्शनल टू I रहेगा। दिस इज ओम्स लॉ। सो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू ओम, इफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, क्रॉस सेक्शन एरिया and length of the conductor remains constant, then the potential applied on the conductor is directly proportional to the current passing through the conductor, V proportional to I। जब मैं proportional का साइन हटाऊंगा गाइस तो मुझे constant लेना पड़ेगा, V is equals to RI। R is a proportional constant that is called resistance। So ये जो R है this is called resistance of wire। Okay, so आई कैन से इस फॉर्मूला से R की वैल्यू निकाल सकते हैं, R इक्वल्स टू V अपॉन I। ये आपका रेजिस्टेंस है जिसके बारे में ब्रीफली हम बात करेंगे, ठीक है। सो अब गाइस एक चीज और बात करते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I है। सो अगर V और I के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ बनेगा गाइस स्ट्रेट लाइन, क्योंकि Y इक्वल्स टू mx प्लस c इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा है V I। वी नो दैट गाइस, देखिएगा इधर V इक्वल्स टू I R, हमारे पास इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये m बन गया, ये बन गया x, c यहाँ पे कुछ है नहीं तो y इक्वल्स टू mx। ये किसकी इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है गाइस, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। दैट मींस इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। सो यूजिंग दिस इक्वेशन, सो मैं कह सकता हूं इस ग्राफ बनाएंगे v और i के बीच में वो कुछ ऐसा बनेगा एंड दिस एंगल विल बी थीटा। गाइस ये जो m रहता है ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, सो आई विल से m इज इक्वल्स टू स्लोप। अब आपको पता है स्लोप किसके इक्वल होती है, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, और इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करवाता हूं तो मैं कह सकता हूं स्लोप किसके इक्वल आ रही है, स्लोप इक्वल्स टू आ रही है रेजिस्टेंस के, या फिर रहने दो, ठीक है, अपन इसको प्रूफ करते हैं tan थीटा। सो tan थीटा क्या होता है, वी नो दैट 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन कॉस tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमारे पास परपेंडिकुलर है v और बेस है i। सो मैं कहूंगा tan थीटा इज इक्वल्स टू v अपॉन i। यहां से देखो v अपॉन i को आप r लिख सकते हैं, v अपॉन i को मैं इस इक्वेशन से r लिख सकता हूं। सो आई कैन से ग्राफ की जो स्लोप है दैट विल बी इक्वल्स टू v अपॉन i r के इक्वल है रेजिस्टेंस के, यानी कि इस ग्राफ की जो स्लोप ये जो रहेगी एंड स्लोप इक्वल्स टू R। ये इस ग्राफ से हमें पता लगता है कि ग्राफ की स्लोप रेजिस्टेंस R के इक्वल होगी। दिस इज ओम्स लॉ। सो गाइज इस लॉ को आप राइट डाउन कीजिए, ये एक फॉर्मूला है जो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। सो गाइज आप इस ओम्स लॉ को नोट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके काफी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। कोई बड़ा न्यूमेरिकल होगा उसमें भी ये वैल्यू काम आ सकती है, क्योंकि आपको R और V निकाल के आगे क्वेश्चन करने हो सकते हैं।
ओके, सो अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ के डिडक्शन के बारे में कि कैसे ओम्स लॉ को प्रूव किया गया और ओम्स ने क्यों कहा कि V प्रोपोर्शनल टू I, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। सो नाउ विल टॉक अबाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? सो मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, देन लेटर ऑन एक्सप्लेन इट। सो बेसिकली रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर to oppose the flow of electric current. So रेजिस्टेंस बेसिकली कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को के फ्लो को अपोज करता है, और यू कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। बोथ आर राइट, बिकॉज चार्ज फ्लो करेंगे तभी आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। ओके, सो रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं बाई आर। आर इज इक्वल्स टू V अपॉन I, जो हमने ओम्स लॉ से डिडक्ट किया है। ओके, नाउ यूनिट की बात करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? We know that R is equals to V upon I. V is a voltage, voltage की यूनिट होती है वोल्ट, और यू कैन से पोटेंशियल, पोटेंशियल वोल्टेज एक ही चीज है, यूनिट होती है वोल्ट। I करंट, करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। सो वोल्ट अपॉन एम्पेयर इज कॉल्ड ओम, और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे आप ओम डायरेक्टली ना लिख के इस सिंबल को रिप्रेजेंट कर देना, ये आपकी यूनिट बन जाएगी। सो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, which is due to the name of George Simon Ohm. Okay, so now let's talk about what are the factors on which resistance depend. So factors on which resistance depends. गाइस, सबसे पहला फैक्टर है आपका कंडक्टर की लेंथ। सो I'll say length of conductor. Now किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है R, वो प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ के। दैट मींस अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। आप कह सकते हैं कि यहां पे मैं लिख देता हूं रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड, cross section area of conductor। आपका जो रेजिस्टेंस होता है R, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। दैट मींस क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। गाइस, यही रीजन है कि घर के अंदर जितनी भी वायरिंग जिसमें ज्यादा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है या ज्यादा करंट ली जाती है, वो वायर मोटे बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा, जो भी आपके घर के बाहर की जो लाइंस होती है वो मोटे तार की होती है, और घर के अंदर जो वायरिंग रहती है वो पतले तार की होती है। उसका रीजन ये है, जितनी ज्यादा हाई टेंशन की लाइन होगी उसकी मोटाई उतनी ज्यादा रखी जाती है। क्यों? क्योंकि गैस जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को कम करता है। सो ये जब करंट को कम करेगा तो बेसिकली करंट जो कम हुई है वो हीट की फॉर्म में बाहर निकलेगी। जब करंट हीट की फॉर्म में बाहर निकलेगी तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी। अगर तुम्हारा तार पतला है और मोटा नहीं है, उस कंडीशन में बहुत ज्यादा हीट निकलेगी और तार को पिघल देगी और तार ब्रेक होकर रोड पे गिर सकता है। ओके, दैट्स व्हाई आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रखा जाता है। थर्ड, ऑन मटेरियल। गाइस, मटेरियल मैं आपको समझा चुका हूं। आप चांदी का वायर बनाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। अब चांदी वगैरह तो बहुत महंगी है और आपने घर के अंदर वायरिंग है, घर के बाहर वायरिंग भी बना ली, तो शायद हो सकता है कि रात को ही वो गायब हो जाए। दैट्स द थिंग। Okay, so guys, by equation 1 and 2 I can say, by equation 1 and 2 I can say R proportional to L upon A। गाइज, प्रोपोर्शनल के साइन को जब मैं हटाऊंगा तो एक नया कांस्टेंट आएगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इस रो एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। सो रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी और specific resistance। So
गाइज एक बार फिर से इसको ब्रीफली देखते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V अपॉन I। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। नाउ फैक्टर जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, सबसे पहले है लेंथ ऑफ कंडक्टर, R प्रोपोर्शनल टू L, दैट मींस लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। सेकंड है क्रॉस सेक्शन एरिया, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, दैट मींस क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। थर्ड मटेरियल पे। नाउ इन दोनों इक्वेशन से मैं कह सकता हूं R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए एंड देन वी विल टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी। सो गाइस नाउ वी विल टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी की रेजिस्टिविटी क्या होती है। सो we know that formula of resistance R is equals to rho L upon A. So by this formula I can find out the value of rho. Rho is equals to R into A upon L, where R is the resistance of wire, A cross section area or L length. Suppose if cross section area of wire is 1 meter square and length L is equals to 1 meter, so आप कह सकते हैं R is equals to, then you can say rho is equals to R A and L की वैल्यू पुट अप करेंगे, so आपको मिलेगा 1 upon 1, that is 1, so you will get rho is equals to R. So हम कह सकते हैं resistance of unit cross section area and unit length wire is called specific resistance. सो गाइज ऐसा कोई भी वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो तो उस वायर के रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। नाउ सो आप कह सकते हैं कि नाउ बात करते हैं यूनिट के बारे में। यूनिट वी नो दैट रो इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L। वैल्यू पुटअप करते हैं, यूनिट पुटअप कर देते हैं। R की यूनिट है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर एंड लेंथ यूनिट होती है मीटर, सो मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा। रो इज इक्वल्स टू ओम इंटू मीटर, ये हमारी रेजिस्टिविटी की यूनिट है। गाइस मैं अब आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक मेटल्स के बारे में बताता हूँ और उनकी रेजिस्टिविटी रेंज भी बताऊंगा। सो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आती है सिल्वर। सिल्वर की रेजिस्टिविटी रहती है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। सेकेंड वी हैव कॉपर यानी कि तांबा। कॉपर की रेजिस्टिविटी रहती है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। थर्ड वी हैव एल्यूमिनियम 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। ये स्पेशली हमारे पास तीन मेटल है और उनकी रेजिस्टिविटी 1, 2, 3 एंड इनकी वैल्यूज हमने कॉरेस्पॉन्डेंस लिख रखी है। सो गाइज तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज कंडक्टिविटी। सो मैं इस पोर्शन को इरेज कर देता हूँ। सो बात करते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। गाइस कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। हमारे पास रेजिस्टिविटी रो होती है, उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन रेजिस्टिविटी जो होती है, दिस इज योर गाइस कंडक्टिविटी। ओके, सो अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की यूनिट के बारे में। आपको पता है सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। रो की वैल्यू हमारे पास है आर ए अपॉन एल। इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे, इस वजह से R इंटू ए अपॉन एल ऊपर चला गया। नाउ अब इन सब की कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिट लिख देते हैं। लेंथ होता है मीटर में, रेजिस्टेंस होता है ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, सो हमको मिलेगा यूनिट में कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओम इंटू मीटर। तो आप कह सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। गाइज ओम इनवर्स को आप महो भी लिख सकते हैं, तो आपकी यूनिट बन जाएगी
महो पर मीटर, और यू कैन से महो इनटू मीटर इनवर्स, और 1 अपॉन ओम को आप साइमन भी कह सकते हैं, क्योंकि ओम का नाम साइमन भी था, जॉर्ज साइमन ओम फुल नेम था, तो आप इसको साइमन भी कह सकते हैं। तो साइमन अपॉन मीटर ये इसकी थर्ड यूनिट है, आपको तीनों यूनिट याद रखनी है। सो गाइस दिस इज आवर कंडक्टिविटी। नाउ आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद हम ओम्स लॉ के डिडक्शन के बारे में बात करते हैं कि ओम्स लॉ को कैसे प्रूव किया गया एंड हाउ ओम सेड दैट V प्रोपोर्शनल टू I। सो गाइस अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ के बारे में। गाइस एज यू नो ओम सेड दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, सो ओम ने ये बात कैसे बोली, हाउ कैन ओम से दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक्चुअली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको ओम ने सॉल्व किया। लेट्स टॉक अबाउट इट। सपोज करते हैं वी आर हैविंग अ कंडक्टर, हमारे पास एक कंडक्टर है एंड लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, गाइस ये कंडक्टर आपका वायर भी हो सकता है, कुछ रोड भी हो सकता है, एनीथिंग। ओके, सो लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज गिवन एज L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस कंडक्टर इज गिवन एज A। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है A। नाउ इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं एंड बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड E है एंड दिस इज द पॉजिटिव नेगेटिव, और बैटरी से इस कंडक्टर पे जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, सो लेट मी राइट इट डाउन एज, जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है कंडक्टर पे दैट इज V, जिसको ऊपर मैंने कंडक्टर पर एरो के फॉर्म में डिनोट कर रखा है। सो ये पोटेंशियल है V। ओके, सो गाइज बाय रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट and drift velocity, we can say I is equals to NEAVD। ये जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी नो दैट एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD is equals to EE tau upon m। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में VD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो आई विल गेट I इज इक्वल्स टू NEA, VD की जगह वैल्यू पुटअप कर दूंगा EE tau upon m। I इज इक्वल्स टू N E into E square A tau upon m into E। This is our equation number 3। Now guys we know that इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक रिलेशन रहता है, जो हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बात की है। सो आई विल से बाय रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, we know that E is equals to V upon length। now ये जो पोटेंशियल है वो L लेंथ के कंडक्टर पे अप्लाई हो रहा है, so I'll say E equals to V upon L। this is our equation number 4। इक्वेशन 3 से वैल्यू को इक्वेशन 4 से वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, so I'll say by substituting value in equation 3, so I will get I is equals to NE square A tau upon m, और E की जगह गाइस इक्वेशन 4 से वैल्यू पुट अप कर देंगे, दैट विल बी V upon L। ओके गाइस V को एक तरफ लगते हैं और बाकी सारी वैल्यू को दूसरी साइड ले जाएंगे, सो आई विल से V is equals to m ऊपर की तरफ जाएगा, सो m upon NE square tau into L upon A into I। अब गाइस ओम्स लॉ कहता है V is directly proportional to I only when, जब टेम्परेचर, प्रेशर, क्रॉस सेक्शन एरिया और L कांस्टेंट रहे। ओके ये सब वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तब भी V is directly proportional to I। सो मैं इन वैल्यूज को अप्लाई करता हूं। गाइस सपोज कीजिए आपका
लेंथ कांस्टेंट है। सो गाइज इस इक्वेशन में मैं लेंथ को क्या कर देता हूं, कांस्टेंट, लेंथ को कांस्टेंट कर दो, क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। नाउ टेम्परेचर और प्रेशर को गाइस देखो, एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैसे ही कांस्टेंट रहता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये वैसे ही कांस्टेंट रहता है, ठीक है गाइस। एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये वैसे ही कांस्टेंट रहेंगे, ये भी कांस्टेंट रहता है एक मेटल के लिए। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज गाइस ये रहता है 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम, गाइस ये भी कांस्टेंट रहता है। तो जिन जिन पे मैं सर्किल बना रहा हूँ गाइस, ये सारी वैल्यू रहती है कांस्टेंट। ना अब बात करते हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट करने पर। मैंने कल आपको बताया था टेम्परेचर चेंज होने पर, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर टाउ डिक्रीज होता है। कल मैंने आपको बताया था, लास्ट टॉपिक था वीडियो का, जिसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो गाइस टेम्परेचर को कांस्टेंट करने पे आपका टाउ भी क्या हो जाएगा गाइस, कांस्टेंट। सो मैं कह सकता हूं इन चार वैल्यू को कांस्टेंट करने पर ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। सो गाइस लुक एट हियर, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। सो मैं कह सकता हूं V प्रोपोर्शनल टू I। इस इक्वेशन को नेम देते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। ओके, सो जब प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो V इज इक्वल टू RI। इस R एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसको ओम ने रेजिस्टेंस बोला, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। क्योंकि हम सारी वैल्यू को एक साथ पुट अप नहीं कर सकते, इसकी जगह ओम्स ने R यूज किया और इसको रेजिस्टेंस बोला। गाइस व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 6, ओके, सो मैं यहां पे कर रहा हूं गाइस, ओके, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6। आप इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर करो तो आपको मिलेगा R इज इक्वल्स टू m अपॉन n स्क्वायर टाउ L अपॉन A, एंड वी ऑल्सो नो दैट अदर साइड वी नो दैट R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ओके, ये भी हमने बात की कि रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला ये भी होता है। गाइस इन दोनों फॉर्मूले को आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा, देखो R की जगह वी आर गेटिंग R, L upon A we are having L upon A, so we can say rho is equals to m upon n square tau। ये एक नया फॉर्मूला आया है ऑफ रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी का हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन गया गाइस। तो गाइस रेजिस्टिविटी का एक नया फॉर्मूला आ गया है हमारे पास। सो आई कैन से रेजिस्टिविटी rho is equals to m upon n square tau। सो गाइस कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन रो, इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो मुझे मिलेगा एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो हमारे पास ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। रेजिस्टिविटी के इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में अभी। एंड सो गाइज ओम्स लॉ प्रूफ कहां पे होता है, ओम्स लॉ यहां पे प्रूफ होता है गाइज। देखो इन चार वैल्यूज को आप कांस्टेंट कर देते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया और लेंथ, तो आपका V प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है, क्योंकि सारी वैल्यूज कांस्टेंट हो जाती है। क्यों, मैंने आपको रीजन एक्सप्लेन कर दिया गाइज। दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड द ओम्स लॉ। ओम्स ने अपने नियम में बोला कि किसी भी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ कांस्टेंट रहेगा तो उस पर अप्लाइड पोटेंशियल V उससे फ्लो करने वाली करंट के प्रोपोर्शनल रहती है। दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड V प्रोपोर्शनल टू I व्हिच इज मेंशन्ड ओवर हियर। और ये जितनी भी क्वांटिटीज है उन सबको उसने एक साथ रेजिस्टेंस बोला, एंड रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से इन क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिलती है, और रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की रेसिप्रोकल रहती है। सो हमने कंडक्टिविटी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। सो गाइज आप इसको अच्छे से उतारिए, अच्छे से समझिए। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको इसके जस्ट बाद आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू। तो गाइज एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। नाउ एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इफ लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज हाफ्ड then what is the new resistance and resistivity। so सबसे पहले आप न्यूमेरिकल करने के बारे में एक चीज को आप समझ लें, जो भी आपका न्यूमेरिकल होता है उसमें जो गिवन डेटा होता है उसको आप पहले लिखिएगा। ओके, इस न्यूमेरिकल में दो डेटा गिवन है, एक तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो हाफ कर दिया है पहले का। सो मैं कहता हूं इनिशियल एरिया इज ए, तो बाद का एरिया ए डैश इज ए बाई 2, और जो आपकी लेंथ है वो डबल कर दी है, तो एल डैश इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ की ट्वाइस कर दी है। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वी नो दैट इनिशियल रेजिस्टेंस, सो मैं कहूंगा इनिशियल रेजिस्टेंस
R is equals to rho L upon A. So this is my equation number 1. Now, so I'll say final resistance R dash is equals to rho L dash upon A dash. ओके, ये क्वेश्चन में लिखे डेटा को यहाँ पे पुटअप करना है. इक्वेशन नंबर 2, L डैश और A डैश की वैल्यू पुटअप करते हैं. सो R डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश इज 2L और A डैश इज A बाई 2. ये 2 ऊपर आएगा मल्टीप्लीकेशन में, सो मुझे मिलेगा R डैश इज इक्वल्स टू रो 2 into 2L. 2 into 2 4. So I'll say 4 rho L upon A. This is my equation number 3. गाइज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करवाता हूं तो मैं कह सकता हूं रो L अपॉन A की जगह मैं R पुटअप कर सकता हूं. सो I'll say by equation 1 and 3 R dash is equals to 4R. दैट मीन्स आपका जो रेजिस्टेंस है वो इनिशियल रेजिस्टेंस का 4 टाइम हो जाएगा. जब भी आप किसी वायर की लेंथ को डबल और क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी. गाइज ये क्वेश्चन आपसे एआईपीएमटी में पूछा जा चुका है और बोर्ड एग्जाम्स में ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछते हैं. ये ट्रिकी क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई. गाइज रेजिस्टेंस तो चेंज होगा बट रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा. आप चाहे वायर की लेंथ को हाफ कर दें, डबल कर दें, 4 टाइम्स कर दें, रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज क्योंकि रेजिस्टिविटी वायर की लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती है. सो आई विल से व्हाई. बिकॉज गाइज अभी मैंने आपको बताया था रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन एन स्क्वायर टो. ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है. इस फॉर्मूले में नो लेंथ एंड नो क्रॉस सेक्शन एरिया इज मेंशन्ड. सो गाइज इस फॉर्मूले में लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं आ रहा है. दैट मीन रेजिस्टिविटी वायर की लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती है. सो व्हेन एवर द वायर्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज चेंज, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम एज वेल एज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा बट रेजिस्टेंस चेंज होगा. सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. सो गाइस अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म इज गिवन एज J वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा E वेक्टर. ये ओम्स लॉ का वेक्टर नोटेशन है. सो वी हैव टू प्रूव दैट कि J वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा E वेक्टर कैसा आया. गाइस वी नो दैट करंट डेंसिटी we have the formula J vector is equals to I upon A. Okay, as this is our equation number 1. As we know, current I is equals to NEA VD, equation number 2. So by substituting value in equation 1, so मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेता हूं. J is equals to I की जगह इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे NEA VD अपॉन A. A से गेट कैंसिल आउट, सो मुझे मिलेगा J is equals to NE VD. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. By the definition of drift velocity, we can say VD is equals to EE tau upon m. This is our equation number 4. Now इक्वेशन 3 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो इक्वेशन 4 से VD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में. सो से बाय इक्वेशन 3 and 4 we will get J is equals to NE VD की जगह ये वैल्यू पुटअप करते हैं EE tau upon m. So E into E square, so I will write it down as NE square tau upon m into E. Guys, जब ओम्स लॉ को प्रूव किया था तो मैंने आपको बताया था NE square tau upon m is conductivity. Okay, so we know that N
E square tau upon m is equals to sigma is equals to conductivity. सो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुटअप करूंगा, सो वी विल गेट J इज इक्वल्स टू सिग्मा E. अगर इसका मैं वेक्टर फॉर्म लिखूंगा, सो आई कैन से दिस इज मैग्नीट्यूड, और यू कैन से वेक्टर फॉर्म में J वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा E वेक्टर, बिकॉज E इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो गाइज ये हमारा ओम्स लॉ का वेक्टर नोटेशन है विच वी हैव प्रूव्ड. सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट ohmic and non-ohmic resistance or conductor. What is ohmic resistance or ohmic conductor, and what is non-ohmic resistance or non-ohmic resistance? So let me write it down as ohmic resistance, or you can also say ohmic conductor. Okay, ohmic resistance वो resistance होते हैं in which V and I का ग्राफ straight line मिलता है. That means such resistance which follow the Ohm's law are called ohmic resistance. So guys, वो सारे रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं ओमिक रेजिस्टेंस कहलाते हैं. ओम्स लॉ को कैसे फॉलो करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ देखना है. सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में आपको वोल्टेज V गिवन है, इस डायरेक्शन में करंट I गिवन है, और इन दोनों के बीच का जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा. सो ये एग्जांपल है ओमिक रेजिस्टेंस का. ओके, नाउ ओके, एक चीज और ध्यान रखना गाइस, V नीचे की तरफ गिवन हो और I आप V x एक्सिस में गिवन हो और I y एक्सिस में गिवन हो, तो ग्राफ की स्लोप रहेगी थीटा. सो आपका ग्राफ की स्लोप रहेगी tan थीटा. यहाँ पे tan थीटा 1/r के इक्वल होगा. ओके, नाउ इफ V, नाउ लुक इट हियर, I दिस इज V थीटा, तो ग्राफ की जो स्लोप रहेगी दैट इज इक्वल टू tan थीटा. यहाँ पे tan थीटा r के इक्वल होगा क्योंकि x एक्सिस पे I है और y एक्सिस पे V है. ओके, सो यू कैन से V इज इक्वल टू आर आई, और यहाँ पे इक्वेशन बनेगी I इक्वल्स टू V अपॉन R. सेम थिंग इस ग्राफ की इक्वेशन रहेगी गाइज I इक्वल्स टू V अपॉन R. R को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो V इक्वल्स टू आर आई, और इस ग्राफ की इक्वेशन रहेगी V इज इक्वल्स टू आई आर. सेम थिंग है, बट दोनों नोटेशन मैंने आपको बता दिए हैं ताकि अब बाद में कंफ्यूज ना हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन ohmic resistance or non-ohmic conductors. Non-ohmic resistance, guys, such resistance which do not obey the Ohm's law, such resistance which do not obey the Ohm's लॉ. ऐसा कोई भी रजिस्टर और रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, दोज आर कॉल्ड नॉन ohmic रेजिस्टेंस. नाउ इसके कुछ एग्जांपल्स है गाइस, एग्जांपल ले लेते हैं हम. दैट मींस इनमें जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा. सो विल से दे डू नॉट प्रोड्यूस स्ट्रेट लाइन कर्व. ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ को प्रोड्यूस नहीं करते हैं. दिस इज I and here in y direction we have V. So first we have टॉर्च बल्ब. जो आपकी टॉर्च का बल्ब रहता है उसका ग्राफ V और I के बीच में कर्वी रहता है गाइस, लाइक प्रोजेक्टाइल. ये प्रोजेक्टाइल ग्राफ है और ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, बिकॉज अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो ये कुछ डॉट डॉट करके ऐसे जाता, बट ये ऐसे फॉलो नहीं कर रहा. दैट मीन्स ये नॉन ohmic रेजिस्टेंस है. नाउ वन मोर एग्जांपल, I V. ये ग्राफ है गाइस डायोड का. सेमीकंडक्टर जो डायोड होते हैं उनके अंदर V और I के बीच में कर्व आपको ऐसा मिलेगा जब वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड हो. ओके, सो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड. नेक्स्ट V I. Guys, this is a graph of electrolytic solution.
you can see each of these graph. इन तीनों ग्राफ में वी आर नॉट गेटिंग द स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही, दैट मीन्स ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस जिनमें वी और आई के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, दीज आर कॉल्ड ओमिक रेजिस्टेंस। तो गाइस इस वीडियो में हमने बात की ओम्स लॉ के बारे में, and we have also proved the Ohm's law. We have talked about resistance, resistivity, conductivity, ohmic and non-ohmic conductors. प्लीज़ आप इस पूरी वीडियो में जहाँ जहाँ आपको नोट डाउन करना हो आप प्लीज़ नोट कीजिए एंड वीडियो को पॉज कर दीजिए जब आपको नोट करना है। जहाँ पे भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है आप प्लीज़ उनको हाईलाइट कर लीजिए, बिकॉज जब भी न्यूमेरिकल होते हैं तो छोटे छोटे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।